Okay, hello everyone. Yesterday we have discussed about the second law. Now today we are moving with the consequences and consequences related to the second law, and we also find the relation between the CGS and SI unit of force, and also do few numericals. Now let us move to the consequences related to the Newton's second law. The first consequences is while catching the while catching the while catching a ball, the cricketer withdraw his hands along with the ball. This is the first consequences के while catching the ball, the player withdraw his hand. Means that when the cricketer is catching the ball, he brings his hand back little backward. Now why he do so? Now we know that the momentum equals to product of mass and velocity. The mass of the ball will remain constant. The velocity changes while the ball come in nearer to his hand while he is catching. The velocity of the ball will changes. Now what does he do? And we know that velocity equals to distance upon time. Now if suppose he increase the distance, he increase the time of catching, means he is increasing this distance will be remain same, distance will does not change. He is what he is doing, he is increasing the time of catching. When he increases this factor, when he increases the time, then what happen? Automatically the velocity get decreased, and when velocity get decreased, the momentum, or we can say the change in momentum will changes. When change in momentum changes, so then according to the formula that force equals to del P upon del T, that means the force equals to rate change of momentum. This factor will changes because we are decreasing this factor, we are decreasing the factor, so automatically the force will decreases. So thus we can say cricketer moves his hand back to increase the time of catching and to decrease the velocity, so that the force applied to his hand decreases and it does not hit its hand. Now once again I am explaining it. So while catching a ball, प्लेयर ने क्या किया? प्लेयर ने अपने हाथ थोड़ा सा पीछे लेके आया. पीछे क्यों ला रहा है? वो पीछे लाके क्या कर रहा है? वो अपना टाइम ऑफ कैचिंग क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. टाइम ऑफ कैचिंग को इंक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इनडायरेक्टली वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ? मास के साथ. तो जब वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है मास के साथ, तो उससे क्या होगा? मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा. रेट चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा. चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा. चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज करने से क्या होगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होगा कि जो फोर्स है, फोर्स क्या है? इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. तो जब मैंने ये चेंज किया तो फोर्स चेंज हो जाएगी, और इन अदर वर्ड्स आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी. फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तो उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी, और वी कैन से कि द बॉल डज नॉट हिट्स हिज हैंड. इससे वी कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हियर ऑल्सो कि एफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के. इट मीन्स कि अगर मैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स भी आपका क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज करेगी. मैंने क्या किया? डेल टी को इंक्रीज कर दिया. डेल टी को इंक्रीज किया तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. ये पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, तो फोर्स क्या करेगी? आपकी डिक्रीज कर जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. सो आई हैव रिटन इट हियर दैट क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैक to increase the time of catching and to decrease the velocity, so that the force applied to his hands decreases and it does not hit his hand. So this is the answer, this is the reason why he is doing so. And some other one more consequences is here कि athletes often lands on the sand or foam after taking a high jump. When he is taking a high jump, what does he do? कि he lands on the फॉर्म और ऑन द सैंड, कि वो फॉर्म के जो कर्टन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फॉर्म्स, उसके ऊपर वो कूदता है, उसके ऊपर वो गिरता है, या फिर वो जो सैंड के ऊपर गिरेगा. तो ऐसा क्यों कर रहा है? अगेन द सेम थिंग इज हियर, ही इज इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ फॉलिंग. टाइम ऑफ फॉलिंग करने से क्या कर रहा है? वो इसको डिक्रीज कर रहा है. इसको डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स डिक्रीज कर रही है. अगर डायरेक्टली वो फ्लोर के ऊपर कूदेगा तो क्या होगा? फ्लोर के ऊपर कूदने से क्या होगा? द फ्लोर हिट्स हिज फीट एंड मे बी द फ्रैक्चर इज देयर ऑन हिज फीट. सो
क्या करना पड़ेगा, उसको सैंड के ऊपर लैंड करना पड़ेगा या फिर उसको लैंड करना पड़ेगा कि किसी फॉर्म के कर्टन पे, सो दैट के वो इसको इंक्रीज कर दे। इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगी, तो उसको चोट नहीं लगेगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। नाउ आफ्टर दिस let us find out the relation between the CGS and SI unit of force. Now we know that के जो CGS यूनिट है फोर्स का क्या है, CGS यूनिट फोर्स का क्या है, फोर्स का CGS यूनिट इज डाइन। वी नो के द CGS यूनिट इज डाइन एंड SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज न्यूटन। एंड सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स को क्या लिखते हैं, वी राइट F इक्वल्स टू ma। इसका ऐसा यूनिट लिख देते हैं फोर्स का, ऐसा यूनिट क्या है इसका, 1 न्यूटन। ओके 1 न्यूटन। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू केजी, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। दिस वी हैव डन। अब इसको करने के बाद मुझे रिलेशन निकालना है इस CGS और SI यूनिट में, तो इसको SI यूनिट रहने दो, इसको न्यूटन रहने दो, इसको CGS में कन्वर्ट करो। 1 kg को 1000 ग्राम्स वी कैन राइट, और मीटर को व्हाट वी हैव टू राइट, मैं इसको लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो डिनोमिनेटर में सेकंड विल रिमेन सेकंड। सो ये हो गया। तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा, 1000 इंटू 100 गिव्स मी 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया। एंड फ्रॉम हियर 10 की पावर 5, सो किस में निकला है, ये CGS में निकला है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में निकला है, तो ये CGS में निकला है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइन लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड रिमेंबर वन थिंग के 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन विच हेल्प यू इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स। So for today, this much. In the next video, we will start with the numericals. And what do you have to do? Today's your homework is you have to do question answers. Question answers of this chapter. Numerical, we will discuss first and then you will do. Thank you very much.